Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you the next part of this chapter, the ashes that made trees bloom. Right? So, dear student, do you remember what you have learned yesterday? What you have learned yesterday? I just want to know the summary of that. If you can summarize it up for me, can you do that? All right, let me help you and tell you the summarization. So can you just revise it with me? Whatever we have read yesterday, that was like we have read that how the old couple, those were called daimyos in Japan, right? Having a pet as a the pet was a little dog, and that old couple was not having any children, so they loved that dog very much, and that dog actually accompanied that old man, old farmer, who was a rice farmer, to his field every day, right? Now, while doing these all things, one day that dog, the pit, was scratching their field, a part of field, and then after he called his master, that old man, where he was scratching, that there's something he found or he has smelt down there, down inside there, the earth. And then after the old person brought the spade and started digging up the field, and then after he found gold there, right? And then after he distributed the money, he threw the party feast to the neighbors and to the friends, and he helped many neighbors, poor neighbors around him. And this was the kindness he shown for what he was known for. Like right now, like him, there was one another couple, but not in the nature same as the old couple, right? They were a crooked person. The old couple was this another old couple was a crooked person. They always they always try to like take away the things from other person, and they were also wicked person. They always beat the animals and the pets if anyone crosses their house, right? Now, since the crooked old couple knew this all story, that Pitt has helped that old couple in getting the gold, they thought to try the same old trick, and that's why they just called the same dog, and they fed him some tidbits and tried to take him to the same place. And they actually insisted that dog should again find some gold for them, but it was not there. And in the anger of that, when they started digging up, they found some cat was graved there, and it was smelling so badly, and in that anger they killed that dog, right? So we have read till there. Now we'll read the remaining part of this. So the owner of the dog heard of the death of his pet, and mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree, set up bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he puts fresh flowers. Then he laid up a cup of water and a tray of food on the grave, and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if
he were alive. Now, in this para, you can see when the owner of the dog, the old kind couple, found that heard like उसका जो डॉग था वो मर गया था, उसको उसको मार दिया गया था. सो दे स्टार्टेड मार्निंग. उन्होंने शोक व्यक्त करना, रोना. उनको उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहा था, जैसे उनका अपना बच्चा, जो उनका अपना चाइल्ड है, वो मारा गया है. और वो उसी पाइन ट्री के नीचे पहुँचे जहाँ पे उस डॉग को जो है उसके मृत शरीर को जो है ग्रेव में डाला गया था, जहाँ पे मतलब गाड़ा गया था उस मृत शरीर को, उस मृत डॉग को, राइट. तो वो पाइन ट्री के नीचे पहुँच करके वहाँ पे उन्होंने जो है पहले तो शोक व्यक्त किया, बैठ करके बहुत देर रोए, दुख व्यक्त किया. एंड देन वो अपने साथ में कुछ बॉम्बूज का ट्यूब लेकर के आए थे, और उन्होंने उस ग्राउंड पे उसको गाड़ने के बाद ऐसा उसको एक शेप दिया जैसे टॉम्ब को दिया जाता है, राइट. और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ वहाँ पे फूल रखे, जैसे कि नाउ जब उस ओल्ड काइंड कपल ने बॉम्बूज ट्यूब्स की मदद से जब एक टॉम्ब बनाया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर्स रखे, और बाद में उन्होंने एक कप में पानी रखा, ट्रे में कुछ खाना रखा उस ग्रेव के नज़दीक. और साथ में उन्होंने कुछ अगरबत्तियाँ जो है, जो काफ़ी कॉस्टली थे, और उनका जो इंसेंस मतलब जो खुशबूदार थे, इंसेंस मीन्स खुशबूदार, ये सब जलाने के बाद, रखने के बाद, एक जो पारंपरिक तरीका होता है जब लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग डेथ के पास बैठ के मौन करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, वैसे उन्होंने काफ़ी देर तक शोक व्यक्त किया. और शोक व्यक्त करते टाइम उन्होंने उसके बहुत अलग अलग से जो डियर नेम्स थे उसको लेना उन्होंने जारी रखा. वो उसके नाम को ले करके रो रहे थे, मॉर्निंग कर रहे थे, राइट. नाउ दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce." Now you can see mortar means bowl. It's a type of bowl, right? अब एक रात की बात है, जो स्पिरिट मीन्स साउल, आत्मा, जो उस डॉग का आत्मा है, वो रात में उनके सपने में आता है. जो काइंड कपल थे, जो ओल्ड मैन था, उसके सपने में आता है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, राइट. सपने में आता है और वो बोलता है कि मालिक, जो मास्टर उसका होता है, उसको बोलता है कि आप जा कर के उस पाइन ट्री को, जो मेरे ग्रेव के ऊपर है, जो मेरे कब्र के ऊपर मतलब खड़ा है, पास में, उसके कब्र के पास में जो खड़ा है, उसको आप काट दो, और काट के उसका एक मोटार बनाओ, बाउल बनाओ, ठीक है. एंड वो बाउल जो होगा वो आपको राइस पेस्ट्री और जो आपका बीन सॉस जो मील में तैयार होता है उसको बनाने में आपको उससे मदद मिलेगा, आप उसको बना सकते हो, राइट. तो द ओल्ड काइंड कपल थॉट कि कैसे उस पाइन ट्री से बाउल बनेगा, मोटार बनाएगा. नाउ सी हाउ दे मेड द मोटार फ्रॉम दैट पाइन ट्री. So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk and sections about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made made a long handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer,
to pound the mass into dough, and the bowl fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. Now, in this para, we can see how after having the dream from that स्पिरिट ऑफ डॉग, उस आत्मा का जो सपने में आ करके और ये बताना कि आप उस पाइन ट्री को कट करके और उसका मोटार बनाओ, तो वो जो ओल्ड कपल होता, ओल्ड मैन जो होता, वो जाता और उसको उस पाइन ट्री को चॉप करके काट करके ले आता, और फिर उसके बाद में जो है वो ऊपर का सेक्शन और नीचे का सेक्शन जो है काट करके उसको हटा देता है, राइट। और जो मिडिल का सेक्शन होता है वो जो इट वाज अबाउट 2 फीट लॉन्ग, वो जो मिडिल का 2 फीट लॉन्ग जो सेक्शन होता है उसको वो रखता है, और रखने के बाद काफ़ी मेहनत के साथ में जो है उसको आग की मदद से और चिसल इज़ अ tool which is used to rub or scratch something, or to take the muscles of the tree from inside, जो गूदा होता है लकड़ी का बीच में से निकालने के काम आता है, दैट इज़ अ टूल, दैट इज़ कॉल्ड चिसल। तो उस तरीके से उसने एक आग और चिसल के मदद से जो है उस 2 फीट लॉन्ग जो एक वुड था, जो पाइन ट्री का कटा हुआ हिस्सा, मिडिल हिस्सा था, उसको उसने बीच में हॉलो प्लेस बनाया, एक खोखला सा जगह बनाया, और वो जो साइज था उस हॉलो प्लेस का, वो एक स्मॉल बाउल के बराबर था, उसके इक्वल था। एक स्मॉल बाउल का जो साइज होता है, रेडियस यू कैन से, सरकमफ्रेंस नॉट रेडियस, तो उसके बराबर का जो है उसमें उसने एक हॉलो स्पेस बनाया, हॉलो प्लेस बनाया। फिर उसके बाद ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, फिर उसने एक हैमर टाइप का, हथौड़े टाइप का, वो भी लकड़ी का उसने बनाया, और इसको एक्चुअली जो वो हैमर वुड बनाया गया था, एक्चुअली इट वाज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। नाउ पाउंडिंग मीन्स क्रशिंग और ग्राइंडिंग। वी आर हैविंग हमारे घर में मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, और सिलवट एंड लोढ़ी बोलते हैं, वेरी कॉमन लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड in village side area, and somewhere now even in town houses also, right। तो उस तरीके का उसने एक हैंडल हैमर बनाया ताकि उसको पाउंड किया जाए। उसमें जो अगर राइस पेस्ट्री बनाना होगा तो राइस डालने के बाद हैमर की मदद से उसको पाउंड किया जाएगा। फिर उसके बाद जब नया साल जब नज़दीक आने लगा, तो एक दिन जो है ओल्ड कपल विस्ड की वो लोग कुछ राइस पेस्ट्री बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए उन्होंने राइस को बॉयल किया। बॉयल करने के बाद जो है ग्रैनी उस बॉयल्ड राइस को मोटार में डालती है, और जो बूढ़ा इंसान होता है, जो ओल्ड मैन होता है, वो हैमर लेकर के उस मांस को जो है पाउंड करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, क्रश करने के लिए जो है वो हैमर उठा करके उसको क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है, और उसको क्रश करके फिर उसका एक डो बनाना चाहता है। डो मतलब गोला। जैसे हम लोग जब व्हेन वी आर फ्लोर जो आटा होता है उसका हम लोग डो बनाते हैं, गोला, उसके बाद फिर उससे रोटियां बनती है। तो उसी तरीके से उस बॉइल्ड राइस को के मांस को ग्राइंड करने के बाद उसका डो बनाना चाह रहे थे वो लोग, वो बनाने जा रहे थे। फिर उसके बाद जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो वो जो ब्लो है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरीके से वो लोग उसको शेक कर रहे थे, उसको ग्राइंड कर रहे थे, तो ब्लो कुछ ज़्यादा हो रहा था, एंड दे फील्ड कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, फास्ट है। और फिर उसको जल्दी से बना करके जो है वो पेस्ट्री जो है अब बन चुका था, डो बन चुका था, और उसको जो है बेकिंग के लिए अब डालना था, वो बेकिंग के लिए डालने वाले थे। इसी बीच अचानक से उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो होल मास जो है, वो जो बॉइल्ड राइस का जो मास है, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो चुका है, टर्न हो चुका है हिप ऑफ गोल्ड क्वाइंस। बहुत सारे सोने के सिक्के के ढेर में तब्दील हो चुका था। नाउ जब ओल्ड वुमेन
ने उस हैंड मिल को अपने हाथ में लिया, तो एक्चुअली एंड फिलिंग इट विथ बीन्स बिगैन टू ग्राइंड, उसको बीन्स जो वहाँ पे पड़ा हुआ था उसके साथ में मिक्स करके उसको ग्राइंड करने के लिए, जैसे टिल नाउ शी वॉज नॉट अवेयर, अभी तक उसको ये मालूम नहीं था कि वो जो मास है जो बॉइल्ड राइस का जो मास है वो हिप ऑफ गोल्ड में टर्न हो चुका है। तो व्हेन शी वाज ट्राइंग टू मिक्स इट विद द बीन, और फिर उसको ग्राइंड करने के लिए मतलब वो डालने वाली थी, तभी उसको एहसास हुआ उसके हाथ से जो है गोल्ड, जैसे बारिश की बूंदें नीचे गिरती है वैसे ही सोने के सिक्के जो है उसके हाथ से स्लिप करके नीचे गिरने लगा। Now, meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. "Goody May!" cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tube under the mill was full of shining mass of gold. So the old couple were rich again. The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic meal. They filled one with boiled rice and the another with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. Now, जब ये सारी घटनाक्रम चल रहा था, उन्होंने पेस्ट्री और सॉस जो मतलब बॉइल्ड राइस का पेस्ट्री और बीन्स का जो सॉस बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ जो वो एक लालची एनवियस नेवर जो उसका जो चाह रहा था कि जो उसके पास है, काइंड ओल्ड कपल के पास है, वो उसके पास भी हो जाए, वो ताका झांकी कर रहा था। पिप्ट मतलब ताक झांक करना। तो वो अपने विंडो से उसको देख रहा था कि कैसे उन्होंने बॉइल्ड बीन्स से जो है और बॉइल्ड राइस से जो है सोने का सिक्का उन्होंने बना लिया। तो वो लोग जो है फिर दूसरे दिन उस ओल्ड काइंड कपल के पास जाते हैं और उनसे उन्होंने मांगा, वो लेंड किया, उधार मांगा वो जो मिल था उनके पास, राइट, ताकि मतलब वो उस मोटार के मैजिक मोटार और मैजिक मिल के मदद से जो है उनको भी पैसे मिल जाए, उनको भी सोने का सिक्का मिल जाए और वो अमीर बन जाए, राइट। सो दे जस्ट गॉट दिस थिंग फ्रॉम द ओल्ड काइंड कपल, जो दयालु जो कपल था उससे उनको ये चीज़ें मिल गई वापस, और वो जब ये ले करके आए, उन्होंने सेम प्रोसेस अपनाया, तो उनको जो है गोल्ड की जगह पे फाउल मास ऑफ वॉर्म्स मिलता है। फाउल मास ऐसे जो मतलब ऐसे वॉर्म्स जो काफ़ी स्मेल करते हैं, काफ़ी गंदा स्मेल करते हैं, उस तरीके का चीज़ में वो जो है बीन और पेस्ट्री और सॉस जो है बदल जाता है, टर्न हो जाता है, और इससे उनको काफ़ी गुस्सा आता है। और जब उनको काफ़ी गुस्सा आता है तो उस गुस्से में जो है वो उस मील को काफ़ी टुकड़ों में काट देते हैं, चॉप्ड कर देते हैं, और फिर उसको एज अ फायरवुड उसको आग जलाने की लकड़ी के तौर पे यूज कर लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, हियर इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंशन चेक, वी कैन सी हियर। नाउ व्हाई डिड द नेवर्स किल द डॉग? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? बिकॉज the dog did not turned to give them gold as he has given the gold to his own kind couples, right? Now second question, mark the right item. The old farmer and his wife loved the dog. Number A, because it helped them in their day-to-day work. B, as if it was their own baby. C, as they were kind to all living beings. What will be the answer? So the correct answer will be
right? Now second is when the old couple became rich, they, number A, gave the dog better food, invited their greedy neighbors to a feast, lived comfortably, and were generous towards their poor neighbors. C number will be the answer. Now third is the greedy couple borrowed the meal and the mortar to make, number A, rice pastry and bean sauce, number B, magic ash to bean rewards a pile of gold. Now answer me. This one, right? Number C. So dear student, this was the second part of this story, and we have gone through the comprehension check also, and I believe that you have understood this chapter, this part of this chapter completely, and we'll just finish it next day by tomorrow. So stay tuned unless we are completing this chapter. Now I will bid goodbye to all of you. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you.